Welcome students. Let us start with the next portion of class 10th economics. Chapter 2nd, sectors of the Indian economy. Till now we have studied the definition of different sectors, compared them, distinguished them. Now we have to correlate and read the data or figures about all three sectors in India: primary, secondary, and tertiary sectors in India. Graph 1 shows the production of goods and services in the three sectors. This is shown for 2 years, 1973, 1974, and 2013-14. You can see how the total production has grown over the last 40 years. ग्राफ 1 जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स. अब इसमें कंट्री की जीडीपी दिखाई गई है विद एन ग्राफ, और उसमें सेक्टर्स की वो दिखाया गया है कि उस सेक्टर्स के कितने वो था, कंट्रीब्यूशन था. सी 1973 एंड 1974, 2013-14 को देखिए. पहले मेनली प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा था, हालांकि डिफरेंस तीनों में बहुत कम था, इक्वली मान सकते हैं. मगर 2013-14 में देखिए, टर्सरी सेक्टर मैक्सिमम, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. लेट अस वर्क दीज आउट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द ग्राफ. विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973-74? अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर. विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14? अगर आप ग्राफ की तरफ देखेंगे तो टर्सरी सेक्टर इज द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द 2013-14. Can you say which sector has grown the most over 40 years? Yes, of course, tertiary sector has grown the most over 40 years. What was the GDP of India in 2013-14? You will see that it is somehow between the top two lines, that are 60 lakh to 550 lakhs crore. What does the comparison between 1973-74 and 2013-14 show? What conclusion can we draw from the comparison? Let's find out. Rising importance of tertiary sector in production. Over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. Increase सब सेक्टर्स में हुआ है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट सब सेक्टर्स में आए, मगर मैक्सिमम आया किस में? टर्सरी सेक्टर में. तो हमें रीज़न फाइंड करना, व्हाई टर्सरी सेक्टर डेवलप्ड सो मच. एज अ रिजल्ट, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. ये चीज़ें हैं: पुलिस, कोर्ट, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन फैसिलिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? टर्सरी सेक्टर में. और इनकी बढ़ती संख्या ही कंट्री को डेवलप दिखाती है कि हर जगह भाई अच्छे स्कूल हैं, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छे बेटर फैसिलिटीज़ फॉर हॉस्पिटल्स हैं, पोस्टल एंड टेलीग्राम सर्विसेज, रेलवेज हैं, एवरीथिंग. तो ये क्या किस चीज़ में आती है? टर्सरी सेक्टर में are required. These can be considered as basic services. In a developing countries, the government has to take responsibility for the provision of these services. Second, इनकी development means the development of tertiary sector. Second reason, the development of agriculture and industry leads to development of services such as transport, trade, storage and the like, as we have already seen. अब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी आई है, मगर उसके कारण जो टर्सरी सेक्टर की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, मार्केट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री हो गया, ये भी तो है इंक्रीज़ होगी ना. अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो इसी के कारण सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर भी इसके साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ हुआ.
storage and the like, as we have already seen. Greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand of services. Third, as income level rises, certain section of people start demanding many more services like eating out, of course, hotels, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. अब लोग अमीर होते गए, इनकम बढ़ती गई, तो वो डिमांड भी अच्छी फैसिलिटीज़ करेंगे ना, तो उसी के कारण प्राइवेट स्कूल्स खुलते गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा। तो इसके कारण किसका हेल्प हुआ? टर्सरी सेक्टर, क्योंकि ये सारी सर्विसेज कौन से सेक्टर में आती है? टर्सरी सेक्टर में। Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4, we shall see examples of these new services and the reason for their expansion. अब आ गया टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जनरेशन के साथ, पहले 1G था, 2G, 3G, 4G, 5G, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स। अब ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो जितना सर्ज आया है, एकदम से जितना रिवोल्यूशनरी चेंज आया है, उसके कारण भी टर्सरी सेक्टर, बिकॉज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो भी ये सर्विसेज हैं, ये सब टर्सरी सेक्टर के अंडर आती है। तो अगर आप देखेंगे मोबाइल यूज़र्स कंट्रीज़ में कितने बढ़ रहे हैं, तो इनके कारण टर्सरी सेक्टर हैज़ डेवलप्ड द मोस्ट. However, you must remember that not all the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. For example, information and technology industries is the best example है. At one end, there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. अब कुछ जगह तो है जहाँ कंपनीज वगैरह की डिमांड, उस सेक्टर की डिमांड बहुत है, मगर उसमें जो लेबर है वो बहुत कम और हाईली स्किल्ड चाहिए। और एक तरफ है जिसमें लेबर की डिमांड बहुत कम है मगर लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, जैसे दुकानें वगैरह हो गई, होकर्स हो गए जो रेडी वगैरह लगाते, ये हो गई। मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन सच टाइप ऑफ जॉब्स. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the text given below. Where are most of the people employed? Let us see. Graph 2 presents percentage share of the three sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sector of the. अभी तक हमने GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था, अब पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर उसका कंपैरिजन करेंगे. 1973-1974 में एग्रीकल्चर यानी मींस प्राइमरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में इक्वली शेयर था जीडीपी में, मिनिमम था सेकेंडरी सेक्टर का. मगर 2013-14 में क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी उतना ही रहा, बस थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इसका शेयर प्राइमरी सेक्टर का शेयर डिक्रीज़ हो गया और टर्सरी सेक्टर का इंक्रीज हो गया. क्यों? रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट व्हाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी, अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट. सिर्फ शेयर ऑफ जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में तो चेंज हो सेक्टर्स का, मगर एम्प्लॉयमेंट स्टिल प्राइमरी सेक्टर्स गोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द इंडिया इज स्टिल सीन एज एन एग्रीकल्चर कंट्री. The primary sector continues to be the largest employer even now. See in the graph 3 share of sectors in employment. 1972-73 में था 74%, 11%, 15%. मगर 2012-11-13 में however कम हुआ है, मगर still it is the maximum. 49, 24, 27. Why didn't a similar shift out of the primary sectors happened in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. क्योंकि जॉब्स एनफ क्रिएट नहीं कर पाए सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर. अभी टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई, तो क्या हुआ, जो नंबर ऑफ लेबर थी, जो वर्कर्स डिमांडिंग थे, वो घट गए. अब पहले गेहूं की मशीन, क्रेन वगैरह, थ्रेशर वगैरह नहीं होते थे, तो
एक एकड़ ज़मीन को काटने के लिए एटलीस्ट 10 लोग होते थे। अब क्या है, एक मशीन आ गई जिसने 10 को हटा दिया, सिर्फ 2 की ज़रूरत है। देखा, 8 यानी टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं पीपल एम्प्लॉयड उन पर फ़र्क पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया टेक्नोलॉजी। इसी के कारण सेक्टर्स में नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल आर डिक्रीजिंग, शेयर होता जो। Even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times. The same applies to the tertiary sector. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स। इंक्रीज हुआ है 1972-73 के कंपैरेटिवली 2013-14 में हर चीज़ में इंक्रीज हुआ है, जीडीपी में भी, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, मगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसके लिए उनका, इसके कारण उनका जो शेयर है वो कम है। और ऐसा मेनली क्यों है, टेक्नोलॉजी के कारण। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sectors, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. अब पॉपुलेशन मैक्सिमम एग्रीकल्चर में लगी हुई है, मगर उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, लेस देन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। मगर टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में पॉपुलेशन कम लगी हुई है, मगर उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मगर होना उल्टा चीज़, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन लगे उतना ही ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मगर इंडिया में ये उल्टा है। In contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce 4/5 of the produce, whereas they employ less than half of the people. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? What it means that there are more people in agriculture than is necessary. So even if you move a few people out, production will not be affected. In others, workers in the agriculture sector are underemployed. अब underemployed का मतलब सोचिए कि एक काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, मगर उस काम को करने के लिए लगे हुए हैं 10 लोग, यानी जो 5 लोगों की पार है वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है, सिर्फ लग रही है मगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे। वही अगर 5 लोग हट जाए तो प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 करे या 10 करे। तो इसका मतलब क्या, जो 5 एक्स्ट्रा लोग लगे वो अंडर एम्प्लॉयड में, बाहर से देखे तो एम्प्लॉयड है मगर उनका प्रोडक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उनको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल 4 रीजन्स कि क्यों टर्सरी सेक्टर्स गेन द मैक्सिमम इम्पोर्टेंस। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहला, जैसे कि सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पोस्टल एंड टेलीग्राम सर्विसेज, ट्रेन्स, बसेज एटसेट्रा, तो टर्सरी सेक्टर को हेल्प हो रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अब इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो रही है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह भी तो बढ़ेंगी ना उनको कोऑपरेट करने के लिए, तो इसलिए टर्सरी सेक्टर। थर्ड, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर लग्जरियस होटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, शॉपिंग, टूरिज्म एटसेट्रा, तो इट इज़ इनडायरेक्टली हेल्पिंग टर्सरी सेक्टर टू इंक्रीज। फोर्थ, और द पास न्यू सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन आया है उसके कारण भी टर्सरी सेक्टर की कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है। तो ये 4 रीजन्स से विच आर मेनली द रीज़न फॉर द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो अब कल हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट दोबारा पढ़ेंगे। तो टिल नाउ आपको ये डिस्कस करना है, और यू हैव टू फाइंड डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयड पीपल। विद दिस आई साइन आउट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।